کہ وہی ظہر کا وقت تھا، رضولی کی سرزمین پر عجیب سی خوشبو پھیلی اور مزار شیخ العالم بیچ سے پھٹا شک ہوا اور شیخ العالم آہستہ آہستہ اپنے مرکز سے باہر تشریف لائے اور کہا حضرت سرکار سیدنا مظہر الدین عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کا 500 عروس مبارک گنگو شریف میں انہی تاریخوں میں ہوگا جو حضرت سرکار سیدنا شاہ ابراہیم صاحب رہے 4 تاریخ کو جمعرات کے دن یہاں عرس شروع ہو جائے گا 4 جنوری کو۔ یار ان دونوں کو دیکھو کیسے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو بھائیو ابھی کا سین کچھ ایسا ہے، جم سے آکے ڈائٹ وائٹ لی، تھوڑا بہت کام نپٹا ہے، تو ابھی دیکھو ٹائم ہو چکا ہے اپنا 3:30 اور 4 بجے تک ہم لوگ چلیں گے درگاہ میں، کیونکہ آج 11ویں شریف ہے نا، آج درگاہ میں بھی جانا ہے اور خانقاہ میں بھی جانا ہے، کیونکہ آج میاں صاحب واپس جا رہے ہیں گنگو شریف، عرس آ رہا ہے نا، قطب عالم صاحب کا اور شاہ ابراہیم صاحب کا ساتھ میں ہوتا ہے عرس، تو وہ آج چلے جائیں گے۔ آج فنکشن بھی ہے خانقاہ میں، وہاں پہ بھی جانا ہے، بٹ اس سے پہلے درگاہ جاؤں گا 4 بجے، 11ویں شریف ہے، اس سے نمٹ گیا مغربی عشاء بعد جائیں گے خانقاہ میں۔ تو ملتا ہوں میں آپ لوگوں سے زیارت میں پہنچ کر۔ آل رائٹ گائز، ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں پیڑا کا چوک، اور دیکھو یہاں پہ ابھی ایک تو بن گیا ہے، دوسرا بھی بن رہا ہے، ابھی چلتے ہیں درگاہ میں، تب تک یہ ریڈی ہو جائے گا، جب کل شریف ہو جائے گا نا تب اس کو لینے آ جائیں گے۔ چل بھائی، ارے اس کے لیے بوری تو لیو، بوری سے تو جا گئے اندر۔ گائز دیکھو یہاں کتنے بہت سارے بکرے ہیں، پیڑ کٹا تھا ایک یہاں مزار شریف کا، اس پیڑ کا یہ سب کچھ کھا گئے، ایک ایک پتا کھا گئے، دیکھیے پتا تھا اس پہ، جیسا آپ نے وسیم نے بتایا ایسے کی پتا کب تھا اس پہ؟ تھے یار، بہت پتے تھے، دیکھ رہا ہو سب کھا گئے۔ چل بھائی اندر چلنا ہے اب، چلو بھائی چلو۔ گائز یہ ہے امن بھائی کا ماما، شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بالجمال روشن القمر قول الوديع زاد كن دنیا شاد دنیا حضرت سرکار سیدنا مظہر الدین عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کا 500 عروس مبارک گنگو شریف میں انہی تاریخوں میں ہوگا جو حضرت سرکار سیدنا شاہ ابراہیم صاحب رہے 4 تاریخ کو جمعرات کے دن یہاں عرس شروع ہو جائے گا 4 جنوری کو، اور اس میں جشن مولائے کائنات 21 جمادی الثانی کو ہم لوگ منائیں گے، اس میں 55واں عرس مبارک جو کہ حضرت عبداللہ شاہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا ہے، 8:45 پہ آپ کا وصال کل ہوگا، اس میں ضرور تشریف لائیں، اس کے بعد لنگر ہوگا۔ اگلے دن سرکار سیدنا شاہ ابراہیم صاحب کی چادر پوشی ہوگی، رات کو ٹھیک عشاء کے بعد میں 8 بجے ہم ٹھیک ٹائم کی فاؤنڈیشن میں یوں کر رہا ہوں کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، دیر سے ہوتا ہے، ٹھیک رات کو عشاء کے بعد میں 8 بجے نعت پاک کی محفل شروع ہو جائے گی، وہ کس ٹائم چلے گی الگ بات ہے، لیکن ٹھیک 8 بجے ہم شروع کریں۔ اور جمعرات کے دن صبح فجر کے بعد میں قرآن خوانی جیسے ہوتی ہے، اور جمعے میں بھی 22 کو اور 22 تاریخ کو جمعے کے دن
22 जमात साली को जश्न सिद्दीक़ अकबर हम मनाएंगे और उसमें रात में ईशा के बाद दात ख्वानी का प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह यहाँ दरबार इब्राहिम में नाम है। 23 तारीख को हम जश्न कुतुब आलम और जश्न शाह इब्राहिम साहब मनाएंगे। 23 जमात साली को सुबह ठीक 10:30 बजे हजरत सरकार सैयदना मदरुद्दीन अब्दुल कुद्दूस गंगोही कुतुब आलम पाक का यहाँ पर विसाल कुल शरीफ मनाएंगे 5वां इंशाअल्लाह। उसके बाद लंगर होगा। उसके बाद में शाम में असर के बाद में हजरत सरकार सैयदना शाह इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का 364वां विसाल कुल शरीफ हम यहाँ इंशाअल्लाह असर के फौरन बाद 4:30 बजे शुरू करेंगे। उसके बाद हल्का होगा, लंगर होगा और फिर ठीक ईशा के बाद में 8 बजे महफिल सिमा शुरू हो जाएगी बिना किसी ताखीर। महफिल सिमा रात भर चले या जो वक्त है उस वक्त तक चले, ये एक अलग बात है। अगले दिन सुबह को 9 से 11 तक महफिल सिमा, 11 से 12 बजे तक रोशन होगा, कुल शरीफ लंगर होगा। उसके बाद अगले साल नहीं इसी साल इंशाअल्लाह 26 दिसंबर को हम फिर उर्स मनाएंगे। यानी हम जनवरी 2024 से शुरू करके दिसंबर 2024 तक उर्स मनाएंगे। सरकार शाह इब्राहिम साहब का 1 साल में 2 उर्स मनाएंगे, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो ये बात ध्यान रखिए कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, सारे मामलात बेहतर है, हमें थोड़े एहतियात की जरूरत है। बीमारियां आ रही हैं, एहतियात की जरूरत है। हमारे अल्लाह के नाम लेगा, अल्लाह के लोग जमातों में निकले हुए उनके लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। जिन इंसानों पे जुल्म हो रहा है अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए, दुआ फरमाए। तो आज जो जरूरत है वो जरूरत के तहत लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं। अल्लाह को राजी करने के लिए लोग घरों से निकले हुए हैं, उनके लिए भी हिफाजत की दुआ फरमाए। और दरबार इब्राहिमी में और जो वलियों के चाहने वाले वो भी निकले हुए हैं, उनके लिए भी हमारी हम दुआ करेंगे। गौसे आजम के सदक़े में अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए और जितने लोग यहाँ आए रब्बे करीम उनकी मुरादों को पूरा फरमाए, उनके घरों से बीमारियों का खात्मा अता फरमाए, मजबूरियों का खात्मा अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। इलाहुल आलमीन अल्लाह जो कुछ तेरा कलाम ढूंढे पाक ढूंढ ताज पा है, ये नियाज जिस तरह भी जैसा भी हिस्सा ले, ऐ रब्बे करीम उसे बेशुमार रहमतें बरकतें लज्जतें हलावतें अता फरमा। ऐ रब्बे करीम हमें रसूल आद। ऑलराइट गाइस, अभी नमाज़ पढ़ के हम फारिग हो गए और अभी जो है ना लंगर स्टार्ट होने वाला है, तो ये सब लोग बैठ गए पहले से। अभी अंदर ना प्लेटें बन रही होंगी, तो फिलहाल अभी मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बबलम्मा ने सब ऑलरेडी बता दिया। उर्स की डेटें जो भी हैं सब बता दी, तो आ सकते हो आप लोग भी, आओ और शिरकत फरमाओ। फिलहाल अभी चलते हैं अंदर, आओ उसने। ये देखो भाई, लंगर के लिए प्लेटें बननी स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पे। चलो हो गया, पूरा हो गया था। दो प्लेट लेगा। ये रखो। हाँ ये
अरे मियाँ आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस लंगर भी मुकम्मल हो गया है। अभी हम लोगों को जाना है खानका में। खानका में मियाँ साहब जा रहे हैं ना, तो रवानगी का कुल शरीफ है, तो अभी हम सब लोग जाएंगे खानका में। चलो भाई चलते हैं भाई। अभी हम लोग आ गए हैं खानका कुद्दूसिया में, और यहाँ पे नातो मनकबत की महफिल चल रही है, उसके बाद होगा कुल शरीफ। जो देखे एक नजर चेहरा हमारे खुतबे आलम का, जो देखे एक नजर चेहरा हमारे खुतबे आलम का। और माता जी शेर तुमने के करे हम एहतराम इस तरह से जैसा कि करते थे, करे हम एहतराम इस तरह से जैसा कि करते थे हमारे बाप और दादा हमारे बाप और दादा करे हम एहतराम इस तरह से जैसा कि करते थे हमारे बाप और दादा हमारे खुतबे आलम का। करे हम एहतराम है इस तरह से जैसा कि करते थे हमारे बाप और दादा हमारे खुतबे आलम, हमारे बाप और दादा हमारे खुतबे आलम का। और खुदा के बाद महबूबे खुदा के बाद और वलियों में, खुदा के बाद महबूबे खुदा के बाद वलियों में हमारे सर पे है साया हमारे खुतबे हमारे है। और जमाना रश्क करता है हमारी खुशनसीबी पर, जमाना रश्क करता है हमारी खुशनसीबी पर। करम हम पर हुआ ऐसा हमारे खुतबे बेशक सुभान अल्लाह हुआ ऐसा हमारे खुतबे आलम का। जमाने भर में लहराता नजर आया मगर अहमद लगा गंगों में है झंडा हमारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर जमाल में तब्दील हुआ और ये आस्ताना बना। और साबरिया सिलसिले के वो सरकार साबिर पाक के तो अव्वल सज्जादा नशीन है ही वो साबरिया सिलसिले के भी अव्वल सज्जादा नशीन है। उसके बाद ही सज्जादा नशीनी शुरू हुई ना, वो साबरिया सिलसिले के भी अव्वल सज्जादा नशीन है जिन्हें हजरत बंदगी शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही कहते हैं। और दोबारा दरवाजा उन्होंने साबिर पाक में खोला तो मुजद्दिद भी सिलसिला साबरिया के हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही है। उन्हीं का ये 500वां उर्स मुबारक मैं जिसकी दावत देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हजरत कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का ये 500वां उर्स मुबारक है। और इस मुरादाबाद की सरजमीन से 50-60 साल से ये खिदमत जारी और सारी है। अल्लाह ताला इसे कायम और दायम रखे। 30-32-34 साल तो मुझे भी आपकी खिदमत में हाजिर होते हुए हो गए हैं। ये 22 साल का था, आज मेरे ख्याल से 52, 54, 55, 56 के करीब पहुंच गया हूँ। और उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया हूँ कि जहाँ से हम बस कुछ कर लिया करते हैं। 2-4 साल रह गए हैं, अब तक तो यही है, बाकी अल्लाह मालिक है। बहरहाल वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं भी 30-35 साल से आपकी खिदमत में हाजिर रहा हूँ और आप मेरे से मोहब्बत करते रहे और इंशाल्लाह ये मोहब्बत हमेशा हमेशा कायम रहेगी। उर्स जो है वो चांद की तो वही तारीखें होती हैं 21, 22, 23, 24, 25। अंग्रेजी तारीखें जो है वो 4, 5, 6, 7 जनवरी। और जिसमें यहाँ से नाना भाई हमारे इकरार साहब बसें लेकर जाएंगे। 3 तारीख को यहाँ से बसें जाएंगी जो 4 तारीख को वहाँ पहुँच जाएंगी। इसी तरह और जगहों से भी बसों का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन अभी तो ये मोहल्ले से बसें हैं यहाँ। इसका टिकट वगैरह ये सब राइट भाई अभी ऐलान करेंगे। और ये जो गुलाम साहिब भाई ने बताया अभी कि कुछ आगे कर दिया गया, कुछ तारीखें आगे पीछे हो गई, कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। बस इतना हुआ है कि कुरान मुकद्दस की ज़ियारत पहले हो जाएगी और फिर पहरान शरीफ की हो जाएगी। कुरान की तिलावत भी पहले होती है तो ज़ियारत भी पहले होनी चाहिए। किसी मौके की तलाश थी और वो मौका अल्लाह ने दे दिया है। 500वां उर्स है, इसलिए इसमें थोड़ी सी तब्दीली करने की कोशिश की है। अगर हम सही रास्ते पर हैं परवरदिगार कबूल फरमाए। दूसरा इसमें फायदा यह है कि अक्सर लोग जो एक दिन के लिए जाना चाहते थे वो कभी 23 में जाते थे, रात को वापस आ जाया करते थे, कभी 24 में पहुंचते थे तो उन्हें 23 की ज़ियारत नहीं मिलती थी। अब इसमें एक फायदा यह है कि वो तबरुकात के दिन अगर जाएंगे तो जब अगले दिन एक रात रुक कर वापस आएंगे तो इंशाल्लाह जुब्बे शरीफ की ज़ियारत अगर होगी तो उसकी भी ज़ियारत करके आ जाएंगे। तो सारे तबरुक भी मिल जाएंगे, सारा उसका तमाम फंक्शन भी मिल जाएंगे, कुल वो ज़ियारत भी मिल जाएगी, महफिल सिमा भी मिल जाएगी और टाइम वही रहेगा 1 दिन और 1 रात। उसमें सभी काम हो रहे हैं। तो ये भी हमने उसमें सोचा है, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और अब ये तोशा अभी जिक्र किया गुलाम साहिब भाई ने, तोशा शेखुल आलम
जो 29 तारीख को है, यानी 15 जमात सानी को, ये हजरत शेखुल आलम शेख अब्दुल हक की आवाजें जब बुलंद हुई रदौली के सरजमीन पर, तो एक दिन हजरत शेखुल आलम हजरत कुत्ते आलम की उस जारोब कशी से और उस मस्तान हक से और उस तरह जिस तरह आपने वहाँ रियाजतें और मुजाहिदात किए, खुश हुए और आवाज आई कि अब्दुल कुद्दूस और रदौली की सरजमीन पर आपको बावला, पागल और दीवाना, मजदूब, पता नहीं क्या क्या लोग कहते थे, क्योंकि आपको ये धुन थी कि मैं शेखुल आलम से बैठूंगा। और ऐसा क्योंकि हजरत शेखुल आलम पर्दा किए हुए एक टाइम गुजर गया था, तो लोग आपको मजदूब, दीवाना कहा करते थे। तो एक दिन आवाज आई मज़ार शेखुल आलम से कि आज जो है रदौली की सरजमीन पर तुम मनादी करा दो, ऐलान करा दो कि शेखुल आलम नाम तक बाहर आएंगे, खबर से बाहर आएंगे और तुम्हें बैठ करेंगे। तो आपने ये ऐलान कराया। तो ऐलान होने के बाद लोगों ने और ज्यादा कि अब तो दिमाग का बिल्कुल ही शर्त अभी कुछ हिल गया है, जो ऐसा ऐलान कर रहे हैं कि मरने के बाद भी वापस आता है। लेकिन लोगों ने फिर भी कहा कि चलकर देख तो ले। तो देखा क्या कि वही जोहर का बाद था, रदौली की सरजमीन पर अजीब सी खुशबू फैली और मज़ार शेखुल आलम बीच से फटा शक हुआ और शेखुल आलम आहिस्ता आहिस्ता अपने मरकज से बाहर तशरीफ लाए और कहा, अब्दुल कुद्दूस कहाँ हो, करीब आओ, क्या चाहते हो कि हमने तुम्हें हाथ उठाया कि आज मैंने तुम्हें अल्लाह से मिला दिया और जो कुछ मैंने हासिल किया वो भी तुम्हें दिया और जो परवरदिगार ने मुझे दिया था वो भी तुम्हें दिया। इस तरह काफी देर की गुफ्तगू हुई और अब्दुल कुद्दूस सुनो, वो तोशा जो मौलाए कायनात से चलता हुआ मुझ तक आया, आज वो भी मैं तुम्हें देता हूँ। कोई जरूरतमंद, हाजतमंद, परेशान हाल आए, उसको कह देना मेरे शेख का तोशा कर लो। और अगर मैदान अगर उसकी वो मुराद जायज पूरी ना हुई तो मैदान हश्र में मेरा दामन पकड़ लेगा। तो ये तोशा हजरत शेखुल आलम का अता करता है। हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही मौलाए कायनात से चलते हुआ हमारे खानदान पर आकर रुका। बहुत सी चीजें हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस पर ही आकर रुक गई हैं, जैसे सज्जाद की साबिर पाक हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस पर आकर रुक गई है, उसी खानदान पर। तोशा शेखुल आलम वहीं रुक गया है, तबर्रुकात पीराने उल्ताम वहीं रुक गए हैं। तो बहुत सी चीजें हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस पर आकर रुक गई हैं, तोशा भी वहीं रुक गया। और कहा कि सिर्फ मुराद के लिए नहीं बल्कि कोई अपनी हिफाजत के लिए, अपनी जान माल की हिफाजत के लिए, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने गले कुचो मोहल्लों की हिफाजत के लिए भी अगर कोई तोशा कर सकता है तो करे। अल्लाह ने चाहा उस पर उसकी हिफाजत होगी, उसकी औलाद की भी हिफाजत होगी। और मुराद अगर कोई मांगता है और पहले करते तो उससे बेहतर, उससे अच्छी बात नहीं है। तो ये तोशा वही हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के आस्थाने पर सहने मस्जिद में होता है। और तमाम लोग जो दूसरे मसलक के भी हैं वो भी हलवा लेकर आते हैं, जाकर देख सकते हैं। जो गए हैं उन्होंने देखा है, घरों घरों से तोशा आता है। अल्लाह ताला जो भी इस नियात को करे मेरे मौला उसको कबूल फरमाए। तो उस सिलसिले में अगर किसी को कुछ वहाँ हिस्से कराने हो, जाना हो, तोशा करना हो, राही भाई से रब्ता कायम कर सकता है।